Namaste everyone and welcome to yet another session of this fabulous series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared in CAT since CAT 2017 till CAT 2024. Today I'll be taking you through CAT 22 slot 3 ka again a quant based reasoning. When I say quant based reasoning, you have to fit in values to have a particular total. There will be some ratio, some amount of properties of numbers, and that is what we have to worry about. So let's quickly look at the framework that we follow. Fate framework is the framework. I'm pretty sure that you have seen some of the other videos. You'll be very familiar. Let's quickly apply this Fate framework to decide कि क्या हमारा next set doable है exam में. We should pick this as a first, second, third set or not. So all the first year students in the computer science department in a university take both the courses AI and ML. So there are two courses. CS के students दो courses लेते हैं, दोनों ही courses लेते हैं. Students from other departments can also take one of these two courses but not both. तो CS, non-CS, AI and ML 2x2 का बढ़िया सा मैट्रिक्स बनता हुआ दिख रहा है. शायद और भी बड़ा बने. Yes, बड़ा क्यों बनेगा? Because now they are saying can take one of these two courses but not both. Students who fail in a course get an F grade, others pass and are awarded ABC. तो A grade, B grade, C grade या फिर F fail. और ये दोनों कैटेगरीज के लिए CS और नॉन सी एस, उसमें भी ए आई और एम एल. सो फेमिलियरिटी तो है. देर इज नथिंग दैट वी आर नॉट फेमिलियर विथ कि कैसे बनेगा. टेबल बनानी है, एक सी एस की एक नॉन सी एस की, प्रीटी स्टैंडर्ड. तो ऐसा कुछ फेमिलियरिटी में तो दिक्कत नहीं है. लेट्स क्विकली लुक एट क्लूज. नंबर ऑफ नॉन सी एस स्टूडेंट्स वेर इन द रेशियो 50% of the students who passed got a B grade, who failed in the two courses were same, no CS student failed, again a ratio 30 failed in ML. So clue में ऐसी कोई ambiguity नहीं है. That should trouble us कि सर पढ़ के समझ में नहीं आ रहा exactly क्या करना है. Believe me, you will find such sets जहाँ पे clue पढ़ने के बाद लगेगा सर पहली बार में clear ही नहीं हुआ क्या कर रहे हैं. So when I say ambiguity, आपको check करना है set selection के पहले. It is your ability to understand this set. So ambiguity is in our favor. There is no ambiguity as such in this set. Time consumption can be tricky. 8 different clues हैं, but remember this is CAT 22. CAT 22 का level of difficulty for DLR sets was lot more than 24 recently that has happened. So level of difficulty उस perspective से. So whenever you look at PYQs, you know if you go back and take up sets of LR Erdos number वाले that appeared in CAT 2004-2005 के time में, तो you will realize कि super challenging है, super difficult है. But time भी ज़्यादा मिलता था, sectional time limit नहीं रहती थी, paper pencil हुआ करता था. So all those things were different at that point in time. So you have to take everything in context. तो contextually relevant होना बहुत important है. So टी वाला पार्ट देखते हैं. टाइम कंजम्पशन 8 क्लूज. तो आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट इज इन आवर फेवर. मेरे हिसाब से बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. मैं इसे टाइम कंजम्पशन में तो फेवरेबल नहीं मानूंगा. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस, डेफिनेट 4 ऑप्शंस. 2 टीटा के क्वेश्चंस, डेफिनेट 4 ऑप्शंस. सो देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस, डेफिनेटली इन माय फेवर. आई विल पिक दिस एज माय सेकंड और थर्ड सेट और फोर्थ सेट में भी पिक करने लायक है. करने लायक है ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा. ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है. बट टाइम कंजम्पशन इज द ओनली पार्ट. डिपेंडिंग ऑन अदर सेट्स I'll pick and choose on that. So I hope this part is clear as far as my opinion. As I said earlier in some of the sessions as well, your opinions may vary greatly. आपको लग सकता है कि सर ये तो बहुत केक वॉक वाला सेट है, तो मेरा पहला सेट होगा. परफेक्टली फाइन. आपको लग रहा है नहीं सर आपके लिए इजी लग रहा है, आप बोल रहे हो सेकंड थर्ड पिक कर लोगे. हम तो पिक ही नहीं करेंगे इतने सारे क्लूज के साथ. It's completely dependent on the kind of preparation you have had, the kind of comfort level you have with different kinds of sets. So it's okay. Now we are going to move to this particular set and create the structure जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हम 2 टेबल्स बना लेंगे, एक CS की एक नॉन CS की. दिस इज हाउ यू विल डू इट इन योर रफ शीट एज वेल. CS में A B C ग्रेड्स मिल सकती है या फेल वाला ग्रेड मिल सकता है और टोटल बच्चे यहाँ आ जाएंगे. 2 कोर्सेज हैं AI या ML. सो या तो AI में कुछ ग्रेड मिलेगी या फिर ML में. आई हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा रो टोटल की. जनरली यूजफुल रहता है कि सपोज CS में A ग्रेड वाले कितने लोग हैं तो इन लोगों का टोटल करते आ जाएगा समथिंग लाइक दिस. नॉन CS ABC ग्रेड्स फेल टोटल AI ML. I hope the structure is fairly clear and believe me this structure is all that you need to learn. मतलब अगर आप ये सेशंस देख रहे हैं तो what are the important takeaways while you are looking at some of these videos. Although अगर आपने खुद से ट्राई करा हो तो काफ़ी कुछ आपसे बन गया होगा. बट इफ यू आर एबल टू क्रिएट सच स्ट्रक्चर कि भाई 2 टेबल बन रही है ना, एक CS एक नॉन CS, AI ML, उसमें ABCF ग्रेड, तो क्या हम इस तरह से टैबलेट कर पाएंगे डेटा को? अगर कर पाते हैं, बिलीव मी नाउ द पार्ट इज नॉट चैलेंजिंग. लेट्स लुक एट द क्लूज. तो हमने फर्स्ट क्लू से स्टार्ट करना है. द नंबर ऑफ नॉन CS. तो जैसे आपको नॉन CS दिखता है सेकेंड टेबल में फिल करना है. हु टुक AI एंड ML वेर इन द रेशियो 2:5. AI या ML लेने वाले किस रेशियो में थे? 2:5. सो माय फेवरेट वेरिएबल इज P. आई विल टेक 2P and 5P.
2p और 5p ले लिए. अब फर्स्ट क्लू वी हैव यूज्ड अप, वी डोंट नीड टू रेफर बैक टू दिस फर्स्ट क्लू. सेकंड क्लू पे चलते हैं. द नंबर ऑफ नॉन सीएस स्टूडेंट्स, अगेन डेटा इज फॉर नॉन सीएस, हु टुक आइदर एआई और एमएल. आइदर एआई और एमएल वी हैव ऑलरेडी रिटन 2p एंड 5p, मतलब 7p हो गया. क्यों? क्योंकि बोथ तो होते ही नहीं है, पहले ही पढ़ लिया था हमने. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक आइदर एआई और एमएल बट दे डोंट टेक बोथ, सो बट नॉट बोथ वाला क्लू ऑलरेडी हमारे पास है. तो 7p लोग हो गए. दिस वाज इक्वल टू नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट्स. तो कैन आई से नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट्स 7p हो गए. और बिकॉज हमें फर्स्ट सेंटेंस में बोला है स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट टेक बोथ द कोर्सेज, मतलब एआई लेने वाले भी कितने लोग हैं 7p, एमएल लेने वाले भी कितने लोग हैं 7p. जितने बच्चे हैं वो सब एआई ले लेते हैं, वो सब एमएल ले लेते हैं सीएस डिपार्टमेंट के. बट नॉन सीएस में एआई अगर 2p लेते हैं तो एमएल 5p लेते हैं. वी आर डन विद सेकंड क्लू एज वेल. लेट्स लुक एट थर्ड क्लू. नंबर ऑफ नॉन सीएस स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द 2 कोर्सेज वेर सेम. नॉन सीएस पे फोकस करना है. हु फेल्ड इन द 2 कोर्सेज, फेल्ड इन द 2 कोर्सेज वेर द सेम, मतलब अगर यहां मैं वेरिएबल बी ले लूं तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी. Who failed in the 2 courses were same and their total is equal to the number of CS who got C in ML. इन दोनों का टोटल इज 2b. दिस टोटल इज इक्वल टू CS C grade ML, CS C grade ML. So can I say ये नंबर 2b आ जाएगा इन दोनों का टोटल. So we are done with the third clue. In both the courses 50% of the students who passed got a B grade. Be very careful. दोनों कोर्सेज में, मतलब आप CS ले लो या फिर नॉन CS ले लो, 50% हु पास्ड. अब पास कितने हुए, ABC तीनों का टोटल होगा यहां, हमें नहीं पता कितना है. उसके 50% जो है वो टिपिकली पास हो रहे हैं. वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट A and C ग्रेड्स आर द सेम फॉर AI एंड ML. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्लू है, हमें 50% निकालने के लिए बेस ही नहीं पता है. भाई दोनों कोर्सेज AI या ML का 50% निकालें तो AI में कितने बच्चे पास हुए हैं तो पता ही नहीं है, तो 50% क्या निकालें. तो विल कीप दिस एज क्वेश्चन मार्क इन आवर रफ शीट. माय रिकमेंडेशन विल बी राइट फोर्थ क्लू, क्रिएट अ मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स देयर सो दैट यू नो कि यार फोर्थ पे वापस आना है. फिफ्थ क्लू पे चलते हैं. नो CS स्टूडेंट फेल्ड इन AI. बहुत अच्छा क्लू. CS AI में कोई फेल ही नहीं हो रहा है, बढ़िया. एंड नो नॉन CS गॉट एन A ग्रेड इन. नॉन CS A ग्रेड एक भी नहीं लाता है AI में. सो फिफ्थ क्लू इज डन. सिक्स्थ क्लू. Number of CS students who got ABC grades respectively in AI. CS, ABC were 3, 5, 2. तो यहाँ पे वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं. सो लेट्स से 3K, 5K और 2K. अच्छा, इसे एक इंटरेस्टिंग चीज 3K, 5K, 2K है और बिकॉज फेल वाले 0. आई विल कम बैक टू दैट क्लू लेटर. बट अभी इस इतना पार्ट करके देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आर कमिंग टू माय माइंड. 5 और 3 8 और 2 10K 7P के बराबर होगा. 10K हैज टू बी इक्वल टू 7P. यहां से मैं अगर K बाय P का रेशियो निकालूं तो कैन आई से 7/10 होगा, मतलब P को 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा. P जो वैल्यू है वो 10 का मल्टीपल, तो मिनिमम 10 हो सकता है, 20, 30 ये वाली वैल्यूज आएंगी बिकॉज दीज आर नंबर ऑफ पीपल एंड दीज आर इंपॉर्टेंट लर्निंग्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्विकली क्वेश्चंस की तरफ ग्लांस कर लूं, इफ आई गो टू क्वेश्चंस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक AI और सारे ऑप्शंस 10 के मल्टीपल है. बट वेट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक AI, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं. If I come back and look at the values for AI यहाँ पे 7P लोगों ने लिया है, यहाँ 2P लोगों ने लिया है, मतलब 9P लोगों ने लिया है और P 10 का मल्टीपल है, मतलब जो आंसर आएगा वो 90 का मल्टीपल आएगा. अब लेट्स गो बैक, 90 का मल्टीपल कौन सा आंसर है, 60 नहीं हो सकता, 210 नहीं हो सकता. 90 की मल्टीपल के लिए 2 ही चॉइसेस बची, 90 या 270. विच मीन्स अगर थोड़ा सा भी लीप ऑफ फेथ ले लो कि यार 90 तो डजंट मेक सेंस बिकॉज बहुत सारी और वैल्यूज ऐड अप होनी है उसके साथ, तो नंबर शुड बी ग्रेटर. तो आई विल मार्क माय आंसर एज 270. और इफ यू फील बाय दिस सिनेरियो भी नहीं यार 90 ले लेते हैं, तो P10 लेके आप फिल इन कर लो मैट्रिक्स को. सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. प्लीज गो बैक, fill in the value using 90 and if it doesn't justify 270 is the answer, if it justifies 90 is the answer. तो बड़ी conveniently आप ये कर लोगे. प्लीज डू इट लेटर ऑन, प्लीज डू इट. यही सीखना है, यही इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं कि हम मल्टीपल्स के साथ प्ले अराउंड करके डायरेक्टली ऑप्शंस की वैल्यूज, अच्छा उसके बेसिस पे फिर क्विकली चेक सम ऑफ द वैल्यूज. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट A ग्रेड इन AI, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट A ग्रेड इन AI. तो हम इस पे आएंगे और डेटा अभी तक जो फिल करा है AI में A ग्रेड, AI में A ग्रेड यहाँ 3K की है और बाकी ये तो 0 है, तो टोटल 3K वाला होगा, मतलब आंसर 3 का मल्टीपल आएगा. और अगर P को 10 लेते हो तो K 7 आएगा. अगर K 7 आएगा तो 3 7 21 का मल्टीपल हमारा आंसर आ सकता है. अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो वैल्यूज दी हैं वो 42
21 का मल्टीपल है, 84 भी 21 का मल्टीपल है, 63 भी 21 का मल्टीपल है. सो वी डोंट नो कि क्या वैल्यू आएगी. करेक्ट. पर अगर हम 90 ले लेते तो हमें पता था P एग्जैक्टली 10 है, तो वी कैन वेरीफाई, एक बार क्विकली चेक कर लें कि क्या इससे डेफिनेटली निकल ही आएगा. सो वी सेट कि अगर P 10 लेते हैं तो P की वैल्यू जैसे ही 10 होगी तो K की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 3 21 आ जाएगा, और 21 तो ऑप्शन ही नहीं है. लुक एट दिस डेटा, 21 is not an option. If 21 is not an option, I can definitely say कि मेरा 90 तो आंसर आएगा ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या होना पड़ेगा 270. तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ही हमने सेट सॉल्व कर दिया, इसका आंसर 270 जैसे ही आ गया आपका. सो लेट्स कम बैक. द मोमेंट यू गेट 270 तो P की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? P की वैल्यू 9P is equal to 270, P is 30, 10 का मल्टीपल 30, तो ये 3 जा तो 7 3 जा 21, K 21 हो गया है, और K 21 हो गया तो आई कैन सॉल्व दिस सेट नाउ डायरेक्टली बिना कुछ और सॉल्व करे. K 21 21 3 जा 63, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ 63 आ जाएगा. दिस क्वेश्चन D इज द आंसर. सो मैंने सेट सॉल्व कर दिया. अभी तो मैंने बहुत सारे क्लू पढ़े भी नहीं है. इफ यू कैन डेवलप दिस स्किल यू आर अ चैंपियन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू लर्न. कि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि एक स्ट्रेट अवे प्रोटोटाइप है, हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, बुकिश बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर निकल गया, कुछ सेट्स में निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज द प्लेइंग अराउंड दैट विल नीड टू बी वेरी गुड एट सो दैट यू गेट योर आंसर्स इन अ जिफी. ठीक है. सो अब मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. हमारा आंसर तो आ ही गया है, बाय द वे सेट क्रैक हो ही गया है. सो आई विल इरेज और मे बी रिमूव दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि इसकी अब जरूरत नहीं है. सो टिपिकली व्हाट वी वर ट्राइंग टू से वाज कि आप रेशियोज के साथ डील करोगे तो आपके 2 क्वेश्चन के आंसर तो वैसे ही 2 क्या और ज्यादा भी निकल जाएंगे. अब बाकी की वैल्यू सोचोगे तो, बिकॉज हमने डेफिनेटली निकाल लिया, गारंटी से निकाल लिया, मतलब कोई तुक्का भी नहीं मार रहे हैं, गारंटी से निकाल लिया कि P 30 है और K की वैल्यू 21 है ना. होपफुली हमारा आंसर सॉल्व करके भी सेम आ जाए. P की वैल्यू 30 और K की वैल्यू 21, ये हमने ऑप्शंस का यूज करके स्मार्टली आंसर निकाल लिया. एनीवेज लेट्स कम बैक. तो अभी तक यहां तक पहुंचे हैं हम. Number of CS students who got ABC grades respectively in AI were in the ratio 3:5:2, while in ML the ratio was 4:5:2. ML में ये रेशियो 4:5:2 है और 2 का 2 भी लिखा हुआ है, तो कैन आई डायरेक्टली से कि 4B और 5B हो जाएगा ये, ताकि 4:5:2 रेशियो मेंटेन रहे. अभी फेल कितने हुए हैं ML में CS डिपार्टमेंट के वो नहीं पता है, तो आई होप दिस इज क्लियर. 6th clue is done. Let's look at 7th clue. The ratio of total number of non-CS students failing in one of the 2 courses. Non-CS students failing in one of the 2 courses is 2B. इसका रेशियो किसके साथ? टू the number of CS students failing in one of the 2 courses. CS students failing in one of the 2 courses, ये वैल्यू पता नहीं है, लेट्स सपोज M ले लेते हैं, तो दिस 2B is to M का रेशियो कितना है? 3:1. Now you have to be super quick with ratios. डायरेक्टली मैं M की वैल्यू लिख दूं 2/3. 2B upon 3 is equal to M/1. डायरेक्टली यहां से लिख रहा है ना, 2B/3 M/1 है, तो M की वैल्यू 2B/3, तो M एलिमिनेट हो गया, M की जरूरत नहीं है. M is 2B/3. I'll erase this part. अब क्या बोला है? That's it. 7th clue is done. Let's look at 8th clue. 30 students failed in ML. ML में यहाँ fail कितने हो रहे हैं CS के? 2B+3. So 2B+3 is the number that we have. Plus यहाँ कितने fail हो रहे हैं ML में? B. और ये total किसके बराबर है? 30 के बराबर. So 2B और 3B 5B. 5B/3 is equal to 30. तो 5B/3 अगर 30 के बराबर है तो 33 is 90/5. B की वैल्यू कितनी आ गई? 18. So now that we have got the value of B, what I am going to do is just plot the values of B or put the values of B. B का अगर रखा तो 18 2 36/3, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 12. और डेफिनेट वैल्यू है, सो आई मे बी पुट इट इन अ डिफरेंट कलर कि ये पक्का आंसर 12 मिल गया है. B हमारा कितना आया था? 18, तो ये 2B 18 2 36 होगा, सो सॉरी. So B is 18, twice of B will be 36, 5 times of 18 will be 90, B 18 है तो ये कितना आ जाएगा? 72. अच्छा B निकाल लिया. बाय द वे K और P हम ऑप्शन से पहले निकाल चुके हैं, वो अभी तक वैल्यू आई नहीं है, बट होपफुली वो भी आ जाएगी. सो आई इरेज दिस पार्ट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. कैलकुलेशंस आर डन. दिस सेट ऑफ स्पेस will still be available for us in case we need to do further calculations. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. अब क्या बचा है हमारे पास? कैन आई से यहां से सबका टोटल करें तो 7P आ जाएगा. ऐड करो, 36 और 12 होता है 48, 48 और 72 120, 120 प्लस 90 इज 210. तो कैन आई से 7P की जो वैल्यू है वो 210 है, तो P की वैल्यू 30 आ गई. चेक करो, हमारी ऑप्शंस के स्मार्ट यूज से भी 30 आई थी. परफेक्ट.
p की वैल्यू 30 आई है, पुट कर देते हैं, 37 210, सो इरेज वन ऑफ द टू वैल्यूज, 7p हम बाहर लिख लेंगे अगर नीड लगी तो, एंड आई से दिस इज 210, दिस इज ऑल्सो 210 विच वॉज नथिंग बट 7p, ठीक है। और अब ये रेशो से 5 और 3 8 और 2 10, 10 के इज 210, तो k की वैल्यू 21, वो भी जस्टिफाई हो गई, k की वैल्यू 21 है, वैल्यूज पुट कर दूं, 63, 21 5 जा 105, 21 2 जा 42, और ये जीरो मिलाकर 210 हो गया। तो कहना है से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का तो सब कुछ हमारे पास डेटा आ गया। नॉन सीएस डिपार्टमेंट में b की वैल्यू आ चुकी है हमारी, b कितना आया था 18, सो लेट्स एलोकेट दिस b एज 18 इन बोथ द केसेस। p की वैल्यू 30 थी तो ये 60 हो जाएगा, और 5p की वैल्यू विल बी 150, तो ये 150 लिख दिया, दिस वाज 2p एंड दिस वाज 5p, ठीक है। अब क्या बचा है, अब ये बस 5 ब्लॉक्स बचे हैं नॉन सीएस के, एंड बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव यूज्ड अप ऑल द क्लूज। नहीं, एक क्लू बचा है, बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ फोर्थ वाला क्लू आपने अपने रफ शीट में मार्क कर रखा होगा। सो लेट्स लुक एट दिस क्लू। In both the courses, 50% of the students who passed got a B grade. Let's start with AI. तो पहला कैलकुलेशन AI के लिए कर लेते हैं कि AI में क्या सिचुएशन बन रही है। AI के अंदर कैन आई से टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो विल से AI में 210 कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, 60 यहाँ है। बी वेरी पर्टिकुलर एंड केयरफुल अबाउट द वैल्यूज दैट यू आर टेकिंग। 270 आर द टोटल पीपल इन AI। AI में फेल कितने हो रहे हैं, तो भाई CS का तो एक भी फेल नहीं होता है, और यहाँ 18 लोग फेल होते हैं, तो फेल वाले टोटल लोग आर 18, तो कहना है से पास वाला नंबर विल बी 270 माइनस 18 विच इज व्हाट 252। इस 252 का दे आर सेइंग 50% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड गॉट अ बी ग्रेड। तो बी ग्रेड कितने लोगों को मिली है, इसका आधा 126 लोगों को बी ग्रेड मिली है एआई में, सब मिलाकर सीएस नॉन सीएस। बी ग्रेड सीएस में 105 को मिली है, सो 105 में एआई की यहां वाली नॉन सीएस की वैल्यू ऐड करने पर 26 आएगा, तो कहना है से दिस नंबर हैज टू बी 21, ताकि 21 प्लस 105 मिलाकर 126 हो जाए। सो दिस डेटा इज क्लियर। और अगर ये डेटा क्लियर है तो कहना है से बस एक ही ब्लॉक मिसिंग था यहां, इन सबका टोटल 60 होना चाहिए। तो 21 और 18 कितना होता है 39, 39 में क्या ऐड करें कि 60 बन जाए, तो 39 में 21 ऐड करेंगे, सो दिस डेटा बिकम्स 21। सो वी आर एबल टू सॉल्व फॉर एआई कंप्लीटली, फॉर सीएस नॉन सीएस सब कुछ हो गया। बट यही सेम चीज उन्होंने बोली थी कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास गॉट अ बी ग्रेड इन बोथ द कोर्सेज, तो कहना है से यही सेम चीज एमएल के लिए भी कर सकते हैं। एमएल के लिए टोटल डेटा देखते हैं, तो 210 बच्चे यहां हैं एमएल के, 150 यहां है, तो टोटल एमएल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 360। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें से फेल कितने हुए, 12 बच्चे यहां फेल हुए, 18 यहां फेल हुए, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स आर 30। तो रिमेनिंग पास वाले आ जाएंगे, पास कितने आ जाएंगे 360 माइनस 30 इज 330। 330 का हाफ कर दो, 50% कर दो, विच इज व्हाट 165। 165 को एमएल में बी ग्रेड मिली है, बी ग्रेड यहां 90 लोगों को मिली है, 90 में क्या ऐड करेगी 165 आ जाए 75। सो कैन आई से दिस ब्लॉक विल हैव अ टोटल ऑफ 75। एनी कंफ्यूजन? पर अभी ये 2 ब्लॉक्स और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। सो और कुछ डेटा दिया है क्या, व्हाट एल्स आर दे सेइंग? सो दिस पार्ट इज क्लियर। देन बट while the number of students who got A and C grades were the same for AI, यही तो हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं, सोचना ही नहीं है। The number of students who got A and C grades were in the ratio 3:2 for ML. ML के लिए A और C grades 3:2 के रेशियो में, तो अगर टोटल करूंगा तो A और C के टोटल बच्चे ML के लिए 5 के बराबर आएंगे। अभी हमने बोला भाई 50% को B ग्रेड मिली है जो पास होते हैं। अगर 50% एमएल के बी ग्रेड मिलने वाले हैं तो रिमेनिंग 50% को ए और सी मिलेगी। 3 ही ग्रेड्स हैं, पास होने वालों में 3 ग्रेड्स होती है। इफ समबडी इज पासिंग यू विल गेट ईदर एन ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। इफ समबडी इज पासिंग यू विल गेट एन ए, बी और सी। बी वाले 50% है तो ए और सी बचे हुए रिमेनिंग का टोटल 50% होगा, और उनका रेशियो 3:2 दिया है, और दैट 50% इज एक्चुअली 165। सो दिस 165 करस्पॉन्ड्स टू द रेशियो ऑफ 5। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने का आ गया 33 का। 33 यहां मल्टीप्लाई कर दे तो 99 यहां, 66 यहां। दिस इज द टोटल सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएल। टोटल एमएल ए ग्रेड वाले 99 है। एमएल में ए ग्रेड वाले यहां 72 थे, 72 में क्या नंबर यहां ऐड करूं सो दैट दिस नंबर प्लस दिस नंबर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 99। तो 72 में क्या ऐड कर दें 27। सेम चीज यहां के लिए चेक कर लें, 66 टोटल करना है। यहां का टोटल सी ग्रेड का 36 है, 36 में क्या ऐड कर दें कि 66 आ जाएगा, सो वो नंबर है 30।
तो 36 and 30 will be 66. You have been able to fill the data for both the tables. Was this time consuming? If you are smart enough to make use of options, not really. If not, this will anywhere take between around 12 to 15 minutes. ऐसा मेरा opinion है. If you're pretty good, you might be able to do it within 15 minutes. Please tell me in the comment section आपका time क्या रहा? Were you able to solve this set within 15 minutes or did it cross 15, 20, 22, 23? इतना टाइम भी हो सकता है कि आपको लगा हो, कोई बुरी बात नहीं है. अभी there is still a lot of time for you to increase your speed by some of the concepts, the tricks, the techniques that we are learning as we go along and progress in the series. So very quickly now I'll erase this part of the discussion that we have had. We'll look at the table. Table looks like this. Questions के answers. How many students took AI? तो AI 210 यहाँ पे थे, 60 यहाँ पे थे, 270 is the number, choice B. How many CS students failed in ML? CS ML failed 12. I hope this is correct. CS failed in ML, तो 12. How many non-CS got A grade in ML? Non-CS A grade in ML. This number 27. How many students got A grade in AI? A grade AI में यहाँ 63 और यहाँ 0, ये 63. So remember these two answers 270 और 63. तो हमने यही चेक लगा लिया कि कौन से केसेस से डेफिनेटली आंसर आ पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. How many non-CS got B grade in ML? Non-CS got B grade in ML. Choice D 75 is the answer. तो मे बी शायद ये चौथा क्वेश्चन तभी हो पाता, ये पांचवा क्वेश्चन तभी हो पाता जब पूरा सॉल्व करते. अदरवाइज फर्स्ट 4 क्वेश्चंस यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व just by using smart use of options. So that's about it. Very quickly let's look at the important takeaways or learnings from this set. The ability to structure data, मतलब I cannot emphasize this enough. इसको मैं जितना एम्फेसिस दूं उतना कम है. ऐसा मान लो कि आपका डेटा का स्ट्रक्चर, कि आप एक CS की टेबल बनाओगे, एक नॉन CS की टेबल बनाओगे, उसमें ABC ग्रेड, F ग्रेड, टोटल, यहाँ पर भी सेम. और दिस इज ट्रू फॉर द 2 heads AI/ML. प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले अराउंड विद डिफरेंट कैटेगरीज in terms of a distribution, either in the form of a simple table or in some cases we'll look at some Venn diagrams जो कि इस टेबल से नहीं हो पाते जब ओवरलैप आता है. Always remember this is an important learning. Whenever there are exclusive categories, please create table. Simplest way to represent data. Whenever there is an overlap, AI में भी बच्चे हैं, ML में भी बच्चे हैं, प्लीज क्रिएट अ वेन डायग्राम सो दैट जब वेन डायग्राम बनाओगे तो आप बोलोगे AI लेने वाले, ML लेने वाले और दोनों लेने वाले कॉमन यहाँ आ जाएंगे. यहाँ पर ऐसा था कि जो CS वाले वो सब लोग AI भी लेते हैं, ML भी लेते हैं, तो ओनली AI ओनली ML वाले 0 थे, तो कुछ बचा ही नहीं, सारा कुछ यहीं आ गया था. और नॉन CS के लिए क्या हो रहा था? नॉन CS के लिए 0 था बीच वाला नंबर, या तो सिर्फ AI लेंगे या सिर्फ ML लेंगे, तो वेन डायग्राम की जरूरत नहीं थी, सिंपल तरीके से टैबुलेट हो गया. बट ये एक जनरल क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को रह सकता है, सर व्हेन टू क्रिएट वेन डायग्राम, व्हेन टू क्रिएट अ सिंपल टेबल. व्हेनेवर देयर इज ओवरलैपिंग डेटा, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ बोथ आ रहा है, क्रिएट अ वेन डायग्राम. नहीं आ रहा है कॉमन, क्रिएट अ सिंपल टेबल. योर एबिलिटी टू प्ले विथ रेशियोज, रिमेंबर दैट पार्ट. हमने बोला कि ये 2 और 3:2 का रेशो था और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 2b वैल्यू था, यहाँ पे m था या ऐसा कुछ था. सो आई सिंपली डिड 3/this अपॉन 2/k whatever. तो k की वैल्यू 4b/3 डायरेक्टली आ जाएगी. सो यू शुड बी वेरी फास्ट इन योर एबिलिटी टू डील विथ रेशियोज एंड फाइनली हैंडलिंग मल्टीपल क्लूज. कुछ क्लूज ऐसे आएंगे, फोर्थ वाला जैसे इस एग्जाम्पल में था, हमने उसको क्वेश्चन मार्क लगा के साइड में रख दिया बिकॉज उसको यूज कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी. सो विल कम बैक टू इट लेटर, विल गो टू द एंड ऑफ द क्लूज एंड देन मूव अलॉन्ग. I am pretty sure that you are gaining a lot of value. Fabulous comments I have been receiving over the kind of feedback that you people have given. Keep watching, keep learning, but the ultimate objective is only one. Understand this ultimate objective, that you, while you are watching this, listening to this, no matter what, create that positive environment around you, that you are going to develop a huge amount of confidence in solving DLR sets and are ultimately going to crack CAT with a fabulous JLR percentile. If you are able to achieve that, then everything else is pretty much on the correct lines. So ultimate objective का focus कभी मत भूलना. I'll take a leave. That's it. Ciao.